Everyone, welcome back. So today we are going to solve the numerical problems of the NCERT textbook. Okay, one by one we are going to solve these questions. Okay, so let's start from the first question. Okay, what is the first question? First question, it says that, okay, now what does it say? Give the magnitude and direction. Magnitude and direction. Let's okay, now this thickness is good. Magnitude and direction of the net force acting on a drop of rain falling down with a constant speed. It said a constant speed. So direction of the net force. What will be the net force? Suppose that a raindrop is falling downward. So if the velocity is constant, it's not varying. That means the net force is equals to 0. The net force has become 0. Second is a cork of mass 10 gram floating on water. 10 gram, a cork of, suppose that this is the water level and this is the cork. Okay. Now its mass has been given 10 gram. So 10 gram multiplied by g, or its value in gram per centimeter square. This will be sorry centimeter per second square. G की value of the G will be in centimeter per second square. Centimeter per second square. Okay. So now it is asking what will be the net force. So we know that when a body floats or floats in a fluid, that means there is a buoyancy force. That is buoyancy force. I am representing it as B subscript F. So the buoyancy force is acting in upward direction, while the weight of the cork, that is equals to mg, W is equals to mg, it is acting downwards. So if it is floating, that means the weight of the cork and the buoyancy force both are equal. So that means there is no net force. Net force is equals to 0. So here also net force will be 0 in case in option A and option B, both the net force is, in both the cases net force is 0. Now third question is C. A kite skillfully held stationary in the sky. If a kite has been stationary, it has been held stationary. Suppose that this is our kite, okay, and it says that it has been held stationary, it is not moving. That means if it is not moving, that means the net force acting on the kite, that is also 0. So it will be, there will be no net force, there will be no net direction. Next, fourth is a car moving with a constant velocity on a rough road. Okay, in each case, when the magnitude and direction of the net force is, it is asking, but it has given that either it is not moving or it is moving with a constant velocity. In all those cases, the net force will be 0. So now in fourth option also, if it is saying that a car is moving with a constant velocity, then also that means there is no net force. Okay, now E. A high-speed electron in space far from all material objects and free of electric and magnetic fields. A high-speed electron, when an electron is moving, electron is a charge. Okay. So if a charge is moving, then we know that it flows electricity, it generates electric field as well as magnetic field. Electric field is represented by capital E, while magnetic field is represented by the capital B. Okay, now if both the fields are connected and high speed electron in space, it is in space, it is far from all the material objects. That means there will be no gravitational force, no electrical force, and no buoyancy force. That means if it has been given a particular acceleration, then it will constantly moving with the same force, because there is no any resistance in the way in between the
in between the in between its path, it is nothing is there to resist its motion, so it will continuously move. So what will be the net force and its direction? The net force and the direction will be in the direction of the electron, in the direction of the electron, where in which in whatever direction it is moving, किसी भी direction में ये move कर रहा होगा, तो we will say that the net force की direction जो है that is also in the direction of the electron, moving electron. Okay. Okay, so let's move to the second question. A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upwards. It is saying that a pebble is thrown vertically upwards. So let us clear all these things now. Okay, now let us reduce it and move it here. Okay, what does our second question says? A pebble has been thrown, a pebble of mass, its mass has been given 0.05 kg, so we will write it as 0.05 kg is the mass of the pebble. It is thrown vertically upwards. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble. So suppose that this is the pebble that is thrown vertically upwards. So what will happen? It will start moving in upward direction, है ना? During its upward motion, in the first case, what it is saying, during its upward motion, what will be the direction and magnitude of net force? If it is moving upward direction, then the net force is in up direction. That's why it is moving in upward direction, है ना? So if it will move in upward direction, so we cannot define the magnitude as it is its initial. Okay, let's say if force f net will be equals to ma minus mg. What is ma? Ma is the acceleration that is initially given to the pebble minus its weight. Okay, at which point the ma and mg will be equal, then the net force will be 0. At that time the pebble will stop. That means when we have thrown the pebble, it will reach up to a certain height, and from that particular height it will return its original path. Okay, so when the when its motion is in upward direction, then we will say the force is also in upward direction. During its downward motion, the net force is in downward direction. At the highest point where it is momentarily at rest, if at the highest point we are saying that it's momentarily at rest, that means f net force has become 0, the same case that we have taught here. Okay, do your answer changes if the pebble was thrown at an angle of 45 degree with the horizontal? So it's saying if we have thrown the pebble like this, means if we have thrown the pebble at with some initial speed at 45 degree, then what will happen? Then after reaching its maximum height, this is h maximum, this is h maximum. So when it will reach to its maximum height, what will happen? Its velocity component of y will be 0. Velocity component of y, velocity y component of the velocity, initial velocity will be 0, but its x component will be always equals to its horizontal initial velocity, that is u cos theta. So do your answer changes? Yes, our answer changes. It's okay, sorry, it is asking about the force na. So in that case we will say we have given an initial speed in in the direction of 45 degrees, so there will be, but when it is reaching at the highest point, then
we will say it is in momentarily at rest, and the net force will be in y direction will be 0, है ना. Ignore air resistance, we have ignored. Now third question, what does third question say? Give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kg. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है m इज इक्वल टू 0.1 kg का कोई 0.1 kg का कोई स्टोन है, उसको उसके ऊपर फाइंड आउट करना है. अब इनके केसेस दे रखे हैं. Let us see its cases. First case is that just after it is dropped from the window of a stationary train. अगर कोई स्टेशनरी ट्रेन है, suppose that let us draw the stationary train here, and ठीक है, ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कोई ये पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है, और इस पैसेंजर के हाथ में यहाँ पर पेबल है. तो अब ये कह रहा है कि जब इसको पेबल को ये नीचे ड्रॉप कर देगा, तो नीचे ड्रॉप करने पर उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट्स का जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी डाउनवर्ड होगा, डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड होगा, और इसकी वैल्यू नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होगी, जो कि 0.1 इंटू 10 कंसिडर कर ले, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर का. ठीक है. जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी. अब ये कह रहा है कि अगर ये ट्रेन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 kmph से चल रही थी, तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर पर सेकंड में. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड. सो इफ इट इज मूविंग विद ए 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, then what will happen, then we will say the stone will also move initially with 10 meter per second. So when the stone is moving horizontally with 10 meter per second speed, then it will, we will say it will move in a projectile motion, it will move in a parabolic curve, so it will follow a projectile motion. Now what does it say, it is asking the net force, so obviously at this time also it's one force will be acting, F is equals to mg, that will be acting in downward direction, and if it is moving with a constant velocity, that means there is no net force acting in the horizontal direction, so net force will be again 1 Newton. Third case, it is saying that just after it is dropped from the window of a train accelerating with 1 meter per second square. अब ये क्या कह रहा है कि अब ट्रेन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट हो रही है. तो जब इस एक्सेलरेशन के साथ में एक्सेलरेट हो रही है, तो हम तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो पेबल है, ये पेबल भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा. अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गई. नाउ हियर आर एक्टिंग टू फोर्सेज, वन F इज इक्वल्स टू ma और सेकंड F इज इक्वल्स टू mg. तो एक ma फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल यानी कि ट्रेन की डायरेक्शन में, और दूसरा इसका वेट लग रहा है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ma ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1, दैट इज 0.1 न्यूटन, और mg ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के बीच में कहीं होगी. तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा विल बी, सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे tan थीटा विल बी mg डिवाइडेड बाई ma, और सिंपली 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.1 न्यूटन, so it has become 10, और theta is equals to tan inverse of 10. so tan inverse of 10 की वैल्यू let us calculate by the calculator. ये क्या कह रहा है, tan inverse of 10,
तो इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट आ रही है, ओके, नियर अबाउट 83 और 84 डिग्री। सो इट्स वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 83 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओके, 1085 एंड 10 ऑफ 84। हाँ, तो ये 85 के अराउंड इसके वैल्यू आ रही है, तो वी विल से 84.5 डिग्री इसका आंसर है अप्रोक्सीमेट। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। सो वी विल से द पेबल will be traveling in the direction in a parabolic curve which has been inclined to the 84.5 degree from the horizontal. Next है lying on the floor of a train which is accelerating with 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, उस कंडीशन में अगर ये फ्लोर पे रखा हुआ है तो फ्लोर पे रखे रहने का मतलब क्या हो गया कि इसका वेट mg तो नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी काम कर रहा होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। और अब ये कह रहा है कि ट्रेन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पेबल भी एक्सेलरेट हो रहा है। तो सिंपली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 0.1, दैट इज 0.1 न्यूटन का फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, one end of a string of length L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a smooth horizontal table। किसी स्मूथ, ये कह रहा है कि एक एंड जो है किसी एल लेंथ की कोई स्ट्रिंग है, इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम, उसका मास दे रखा है एम। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसकी लेंथ हमने मान ली एल है, और ये कोई पार्टिकल मान लिया, इसका मास मान लिया हमने m है, एंड द अदर एंड टू ए स्मॉल पेग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, सपोज करो इस टाइप से, ठीक है, ये कोई टेबल है ना, इसके साथ में ये कनेक्टेड है। If the particle moves in circle with speed v, the net force on the particle। अब ये क्या है, कह रहा है कि अगर ये पार्टिकल है ये कैसे करे, कैसे मूव करे, ये कह रहा है कि ये सर्कल में मूव करे। तो सर्कल एक बना लेते हैं जिसकी रेडियस जो है वो इसके बराबर होगी, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेटली ना, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये सर्कल में पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है। नाउ व्हाट इज सेइंग, विद स्पीड v द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये v स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है लगातार, किसी भी, मान लो कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको कहा कि ये ट्रेवल कर रहा है, तो अब ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि इसके टुवर्ड्स द सेंटर है, तो टुवर्ड्स द सेंटर इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ये कहेगा इसके ऊपर जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो टेंशन ही इसके लिए किसका काम करेगा, ये टेंशन काम करेगा इसके सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी mv² के इक्वल। ठीक है, और नेट फोर्स जो है वो कितना हो रहा है, नेट स्ट्रिंग पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो है t। तो हम कहेंगे कि t और ये जो mv² है, इनका जो नेट फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल आएगा। तो हम कहेंगे कि सर t माइनस mv²/L विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको किसी और चीज़ से डिनोट कर देते हैं,
इसको सिंपली एफ से कर देते हैं चलो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स वैल्यू विल बी एफ सी। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, हम कहेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टी माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल के डायरेक्ट इक्वल होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर सेकेंड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड। रिटार्डिंग फोर्स है यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर। ओके तो छोटा कर देते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, हट गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी कि एक 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है जो कि रिटार्डिंग है। नाउ द इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, सो मास इज ऑल्सो गिवन 20 kg, मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 15 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। तो सिंपल है, सबसे पहले फोर्स और मास को मिलाकर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। सो एफ इज इक्वल्स टू एम ए और ए इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एम। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन डिवाइडेड बाई इट्स टोटल मास दैट इज 20। सो इसकी वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है ना। तो हम इस फोर्स को भी नेगेटिव ले सकते हैं। हम यहाँ पर पॉजिटिव फोर्स लेने की जगह इसको हम कह सकते हैं कि सर ये नेगेटिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है -50। तो उस कंडीशन में ये -50 हो जाएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा वो होगा नेगेटिव ऑफ 2.5। सो वी हैव ए एंड if negative acceleration is given that means at some point its final velocity is going to be 0। तो ये पूछ भी रहा है कि कितना हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, ये कितना टाइम लेगी। तो v पता है हमें, a पता है, u पता है। तो बाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। So v is equals to 0, u is equals to 15 minus 80, 2.5 into time t. So t will be equals to 15 divided by 2.5. So इसका आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 सेकेंड का टाइम लेगा पेबल जो कि उसको कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए, सॉरी पेबल कह रहा हूँ, ये एक्सटर्नल फोर्स का 6 सेकंड का टाइम लेगा बॉडी को स्टॉप करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको छोटा करके एक साइड हटा देते हैं। ये लो हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन इज सेइंग ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg। तो सबसे पहली बात की मास इसने दिया हुआ है 3 kg का, लिख दो। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसकी स्पीड चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल हो गई और फाइनल स्पीड कितनी हो गई, v इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स। सो टाइम भी दे दिया इसने, 25 सेकंड का टाइम जो है ये लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सिंपल है, सबसे पहले u पता है, t पता है, v पता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो निकालते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन बाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v कितना है 3.5, u कितना है 2 डिवाइडेड बाई टाइम लग रहा है 25।
सो 1.5 डिवाइडेड बाई 25, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। अब ये पूछ रहा है कि उसका नेट जो कांस्टेंट फोर्स था वो फोर्स कितना लगेगा। सो इट्स फोर्स विल बी F इज इक्वल टू मास से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन को सिंपली, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.06 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.18 न्यूटन। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे पता चल जाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो है इनकी वो कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज। तो सबसे पहले हम एक बॉडी बना लेते हैं, ये लो ये बॉडी बना दी। अब इस बॉडी के ऊपर हम कहते हैं कि ये है मास दे रखा है इसका 5 kg दिया हुआ है 5 kg। अब ये कह रहा है कि दो परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन जो हैं ये एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम मानते हैं कि सपोज दैट दिस फोर्स इज एक्टिंग, सपोज दैट दिस इज 6 न्यूटन फोर्स एंड दिस वन इज 8 न्यूटन वाला फोर्स, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दिस इज 90 डिग्री। अब ये पूछ रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सीधी सी बात है, तो मास हमें दिया हुआ है m इज गिवन 5 kg, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है और उसी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये बॉडी जो है मूव करेगी। तो अगर एक फोर्स 6 न्यूटन का है दूसरा फोर्स 8 न्यूटन का है तो हम यहाँ पर वेक्टर लॉ लगा सकते हैं। तो रिजल्टेंट इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो हम ये R जो है मान लेते हैं कि ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है। सो रिजल्टेंट फोर्स R will be equals to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग भूल गए होंगे, प्लस 2ab cos थीटा। सो इट्स वैल्यू विल बी a स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये वाली टर्म पूरी जो है जीरो हो जाएगी क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, और 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36 दैट इज अंडर रूट 100 और सिंपली 10 न्यूटन। क्लियर है, हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स लग रहा है। तो 10 न्यूटन के मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा, तो सपोज दैट ये जो डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा। तो दूसरा फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए, tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। b की वैल्यू यहाँ पे b क्या है, 8 न्यूटन है b सेकेंड फोर्स। सो 8 न्यूटन साइन थीटा, थीटा कितना था 90 डिग्री था, डिवाइडेड बाई a 6 है और प्लस 8 cos 90 डिग्री। ओके, सो अगेन 8 cos 90 की वैल्यू तो जीरो हो गई और sin 90 की वैल्यू हो गई 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8/6 और सिंपली 4/3। सो वी विल से tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1.33 और सिंपली अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1.33। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इट्स वैल्यू विल बी नियरली इक्वल टू 47 डिग्री, 47 और 48 डिग्री जो है इसका आंसर आएगा। ये रैंडम अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये अप्रोक्सीमेट इसलिए है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमने कुछ नहीं किया, वेक्टर फार्मूला लगाया रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के बीच में,
और वहाँ से फॉर्मूला यूज़ किया हमने, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आज के लेक्चर में हम इसको यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। ओ यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो सॉल्व करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए इसको छोटा करके यहीं पे रख देते हैं। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते हैं। थैंक यू।